Hello everyone, I have come back with new lecture of electrostatic potential and capacitance, chapter 2 of class 12 physics. So welcome back to my channel. I am Raj Chetri and my channel's name is Right Concept Tutorials. So before this we had done video lecture number 3, and in that lecture we discussed about the potential, the electrostatic potential due to a dipole at any point. But we can find out the potential due to a dipole on its axis and even on perpendicular bisector. Okay, we can discuss that at any time. But today I have come with some numericals, and then I will next I will go to the some numericals based on the relationship between electric field and potential. Okay, so numericals. This is the first series of numericals of this chapter. So let us do this. Mm, Let us see number 1. And there are some other question also here. I have written down over here a question here also. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या है कि दो चार्ज को रखा हुआ है 3 × 10⁻⁸ कूलम और एक है -2 × 10⁻⁸ कूलम. They are separated by a distance of 15 centimeter. Okay. Now we have to find a point on the line joining the two charges where electrostatic potential is 0. ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट हमको फाइंड करना है जहाँ electrostatic potential due to the two charges will be 0. तो वो पॉइंट कहाँ हो सकता है? एक तो यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पे, और एक यहाँ हो सकता है. ठीक है. It has been assumed that the first charge is placed at the origin and at a distance of 15 centimeter. Another charge is placed that is at A, so it is in the positive direction of x-axis. So there will be no point. It is not possible that a point is there towards the negative side of x-axis. X is always positive here. It has been considered. Okay. So suppose और एक पॉइंट यहाँ पे P है, मान लो ये P है, ये Q है. तो पॉइंट में भी P और Q. Let P or Q be the point where, so शुरू कर देते हैं, where potential is 0. electrostatic potential is 0. तो अभी हमको निकालना है, मान लो ये 1 है, ये 2 है. This is 1, this is 2. Charge 1, charge 2. So therefore इसका डिस्टेंस हमने मान लिया x. इसका डिस्टेंस हमने मान लिया x, ये वाला, यहाँ से लेकर के x के डिस्टेंस पे. और इसका भी हो सकता है अगर अगर P पॉइंट को लेते हैं तो x के डिस्टेंस पे ये चार्ज और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस x हो गया, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 - x. पहले वो कर लेते हैं. For the point P, V equals to V1 plus V2. ठीक है. V1 कितना है? V1 है, V1 कौन सा होगा? यहाँ पे V1 KQ/R. KQ/R is the potential due to a point charge. This is a point charge. This is also a point charge. Okay. So Q1 कर देते हैं by R. R is our x. Now minus
V2. Potential due to negative charge is negative. Okay. So okay, so let us write plus KQ2 by ये कितना हो जाएगा? If this is x, this is 15. This will be 15 minus x. 15 minus x. Then it has to be 0, है ना? It has to be 0. 0. This is actually Vp. 0. Then K कॉमन, Q1 कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻8 बाई एक्स, और ये तो कॉमन आ गया। Q2 क्या माइनस में है, तो -2 इंटू 10⁻⁻8 बाई 15 - x, ये हो गया। अब ये तो 0 बन जाएगा। सो और क्या 10⁻8 भी 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 3/x माइनस 2/15 - x इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। k is 0, 10⁻⁻8 कॉमन, दिस इज आल्सो 0। and let us solve. So 3/x इक्वल्स टू 2/15 - x। अब इधर करते हैं इसको, 15 - x अपॉन x इक्वल्स टू 2/3 by alternate of 15 - x by x is equal to 2/3. Then cross multiply, 45 minus 3x equals to 2x. Then 45 equals to 5x. Then x equals to 9 centimeter. Okay, 9 centimeter ये हो गया। और एक क्या है, if q is taken as a point, so for the point q, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये कि what is the distance of q from this charge? 15, sorry, total क्या, if you take q as a point, then distance will be this one, x, ये जाएगा x। From origin it is at distance of x, and p here also from origin it is at distance of x। so इसको हम x1 कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं, ठीक है, x1 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 है ना, x1 x1 x1। okay. Now x2 also may be the option, x2 भी एक ऑप्शन हो सकता है ना। तो अभी x2 निकालने के लिए q लेना पड़ेगा। सो इसका डिस्टेंस कितना है, x2 है। अच्छा, चार्ज कौन सा है, 3 × 10⁻⁸, यही चीज आ जाएगा। तो 3/x2, ये पॉजिटिव चार्ज है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, अब माइनस लग जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, ये दोनों इसका डिस्टेंस, टोटल x2 था और ये इधर कितना है, 15 है, x2 - 15, दिस विल बी, सो इट विल बी 2/x2 - 15। यहाँ 15 - x1 था, अभी x2 - 15 हो गया। क्लियर? नाउ इज इक्वल टू 0, दिस इज ओके। सेकंड केस, and if you solve this one, this will be x2 - 15 upon x2 equals to 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कर देता हूँ, 3x2 - 45 is equal to 2x2। so 3x2 - 2x2 is x2 is equal to 45 centimeter। so the point may be at distance of 9 centimeter from the origin, or it can be at distance of 45 centimeter from the origin। समझ में आया? There is a system of two charges, 3 × 10⁻⁸ coulomb, 2 - 2 × 10⁻⁸ coulomb. They are separated by a distance of 15 centimeter. Then we have to find a point on the line joining the two charges where potential is 0. The potential means potential due to the first charge plus potential due to the second charge, वो 0 होना चाहिए।
तो हमने सोच लिया 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे दोनों के अंदर, दोनों चार्ज के अंदर, और एक पॉइंट यहाँ पे ऑन द एक्सटेंडेड OA. ओके, it is at distance of x1 and it is at distance of x2 from the origin, and at the origin the first charge is taken. तो ये कर दिया. तो Vp पहले वाले केस में Vp V1 plus V2 दोनों का वैल्यू फार्मूला KQ by R होता है फार्मूला. तो यहाँ पर KQ1 by x प्लस दूसरा वाला KQ2 by 50 माइनस x, क्योंकि इसकी दूरी x1 है, x1 ना, x1 है इसलिए x1. ओके, दूरी x1 है, तो ये दोनों की दूरी कितनी होगी 15 माइनस x1, तो ये हो गया माइनस x1. तो k कॉमन, 10 to the minus 8 will common, that will be 0 because total potential is 0. Then solve it, you will get x equals to 9 centimeter. Similarly, for the point Q which is at distance of x2, it will be 3 upon x2 minus 2 upon x2 minus 15. ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल x2 माइनस 15, तो ये बच जाएगा x2 माइनस 15. इसको सॉल्व करने से क्या आ गया 45 सेंटीमीटर. So there are two options. The total potential may be 0 at 9 centimeter from the origin, or it can be at 45 centimeter from the origin. Okay. Okay. Now there is another question. यहाँ देखो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसका फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऊपर की तरफ मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. क्लियर इतना? अच्छा, अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट P पॉइंट Q, यहाँ पर भी 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट A पॉइंट B. अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा है. ओके, if we do these questions, okay, explain these questions, then lot of concepts will be developed. मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये सब का जो है ना कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट नंबर 1, व्हाट आर द साइन ऑफ Vp माइनस Vq? क्या बोल रहा है Vp माइनस Vq, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q. ठीक है, मैंने इससे पहले वाला लेक्चर में बोला था कि द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पोटेंशियल Q में कम होगा. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी लेस, विल डिक्रीज. पोटेंशियल Q का पोटेंशियल कम होगा और P का पोटेंशियल ज़्यादा होगा. यहाँ पर क्या निकालना है Vp माइनस Vq. Vp मतलब पोटेंशियल ज़्यादा और Vq मतलब पोटेंशियल कम. ज़्यादा माइनस कम, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा. तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, इसको मिटा दूँ, ये हो गया ना, इधर मैं इसको मिटा देता हूँ. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया नंबर 1 का आंसर, पोटेंशियल decreases in the direction of electric field. ठीक है, therefore Vp is greater than Vq. ये कम है, ये ज़्यादा है पोटेंशियल. ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ, Vp माइनस Vq is positive. We have to give the sign of Vp minus Vq. It will be positive. अच्छा, फिर और क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होगा A पे, B पे ज़्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि माइनस Q की वजह से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव होता है. तो ये नेगेटिव यहाँ का पोटेंशियल का करने के लिए KQ बाय R करना पड़ेगा. ये R छोटा है. अच्छा, फिर इसका पोटेंशियल करने के लिए KQ बाय माइनस KQ बाय R
आर करना पड़ेगा, और इसका आर जो है, इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर आर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नीचे का आर ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे लेस नेगेटिव हो जाएगा, ये दिस विल बी लेस नेगेटिव एंड दिस विल बी मोर नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर एंड मोर नेगेटिव इज स्मॉलर। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, और ऐसे भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज ऑलवेज, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे ए पे पोटेंशियल कम हो गया और बी में ज़्यादा है। तो we can write that VA is smaller than VB, है ना? Potential decreases in the direction of electric field, so VA is smaller and VB is greater. Okay? इसका मतलब क्या हुआ? VA माइनस VB छोटा से बड़ा को माइनस कर रहा है, यानी कि लेस देन 0, नेगेटिव। सो द साइन ऑफ VA माइनस VB विल बी नेगेटिव। ये हो गया नंबर 2। अभी नंबर 2 करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? What is the sign of potential energy difference of a small negative charge placed between P and Q and A and B? स्मॉल नेगेटिव चार्ज P और Q के बीच में एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। सोचो आप, if a small negative charge is placed here, small negative charge placed between P and Q will be attracted by electric field, will be attracted by positive charge, by positive charge। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, यहाँ पे अगर -2 रख देते छोटा सा, है ना, तो वो माइनस चार्ज को क्या करेगा, इस माइनस चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर क्या बोला है? What is the sign of potential energy difference of a small negative charge placed between P and Q and A and B? जब ये अट्रैक्ट करेगा, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। Negative of work done by conservative force, and that is equals to positive of work done by external force। तो नेगेटिव चार्ज तो इधर आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो हमको ऐसे वर्क करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा बाहर की तरफ, तो उसके ऊपर वर्क होगा। वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी P से Q में, है ना, हाँ, P से Q में अगर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो -Q अगर यहाँ पर रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, नाउ वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द ओरिजिन। यहाँ तक ले गए, वर्क कम हुआ, यहाँ तक ले गए, वर्क ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड बिटवीन P and Q and A and B। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, यहाँ कम वर्क डन, यहाँ पे ज़्यादा वर्क डन, ठीक है। तो डिफरेंस का ये फाइनल, ये इनिशियल, तो फाइनल का ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्मॉल नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड बिटवीन P and Q विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, सो
potential energy difference, potential energy difference delta U is equal to U final minus U initial greater than 0. U final is more, U initial is less, because when we push away from the charge, then you are doing some work by external force and there is potential energy. So this is greater. This is greater, that's why it is positive. Answer. Then again A and B. When negative charge is placed between A and B, अब सोचो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट में हमको ऐसे पुश करके लाना है और उसके ऊपर वर्क करना है। वर्क करने से क्या होगा, उसका उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो बी में वर्क हमको कम करना पड़ रहा है और ए में ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज एट ए इज मोर, क्योंकि ए में पोटेंशियल कम है, हाँ नेगेटिव, हाँ तो यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो उसको रिपेल करेगा, उसे अगेंस्ट में करना पड़ रहा है। तो ई ए, दिस विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। When negative charge is placed between A and B, then it is repelled by negative charge by minus q, and delta U will be U final minus U initial positive. Potential energy change in potential energy will be positive. Clear? ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव इधर ला रहा है, उधर ले जाना पड़ रहा है, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या है, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, change in potential energy is equal to work done by external agency। और थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला क्या है, what is the sign of work done to move a small positive charge by electric field, from small positive charge from P to Q, from P to Q। ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन टू मूव अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P to Q। मान लो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज लगा हुआ है Q नॉट, इसको यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, if there is a positive charge, then this positive charge will repel it and the force will act in the direction of electric field। तो क्या होगा ये, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन, टुवर्ड्स द फोर्स वर्क डन हो रहा है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी अवे फ्रॉम द चार्ज है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन टू मूव अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P to Q, पॉजिटिव। वर्क डन बाय electric field on
small positive charge to move it from P to Q is positive, because it is in the direction of अगर हम उधर से इधर प्रेस करते हैं ना तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन रिलेटिव ये और डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा थर्ड। अच्छा, अब क्या आ गया फोर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट को बी से ए में ले जाना है, इसके द्वारा एक्सटर्नल एजेंसी। अगर ये माइनस रखते हैं, सोचो अगर ये माइनस रखते हैं, ये भी माइनस है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में इसको प्रेस करके वर्क करके इसको इधर लाया जा रहा है, इट इज बीइंग मूव टुवर्ड्स ए against the electrostatic force. So sign a work done by external agency, हम जो लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, वर्ड मूव में नेगेटिव। तो और कहाँ लिखो, अच्छा इसको मिटा देता हूँ। फोर्थ, work done by external agency to move negative charge from B to A equals to negative, because against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जो वर्क करते हैं वो नेगेटिव होता है, ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, अब आ गया फिफ्थ नंबर का ना, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज चेंज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। स्मॉल नेगेटिव चार्ज बी टू ए जाते समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अभी अगर माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इसको रिपेल करेगा, भगाएगा, भगाएगा। तो आप बोल रहा है कि बी से अगर ए में लाना है ऐसे करके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इफ इट गोज अवे देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। लेकिन उल्टा आ रहा है, ऐसे उल्टा रिपल्सन के अगेंस्ट में आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा। नंबर 5 में क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। सो when a small negative charge is moved from B to A, its kinetic energy will decrease due to repulsive force, ये हो, ठीक है।
So these are the few things that we can discuss. Now just write down this. I am going to erase this. ओके, मतलब हो गया है। चलो, नाउ वी विल डिस्कस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, थोड़ा डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ। इससे पहले वाला जो वीडियो था, लेक्चर था, उसमें slightly we have discussed about electric field and potential. Okay, and I had told that electrostatic potential decreases in the direction of electric field. Okay, that is true. So we will see some more relations, some kind of derivation between to find the relationship between electric field and potential in some other way for uniform electric field and for non-uniform electric field both. Okay, and along with numericals. Let us discuss then. So we should not forget about the potential due to dipole at a given point. Okay. There is a shortcut process also to find out the potential of dipole. Let me discuss that first. Then I will move to relationship between potential and electric field. Potential और electric field में एक अच्छा सा एक रिलेशन है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही मतलब करीब का रिश्ता है, बहुत ही शानदार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, और डाइपोल का कुछ करना है। मान लो यहाँ पर एक डाइपोल है, डाइपोल का क्या है, पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, तो सबसे पहले ऑन एक्सिस, ठीक है, मान लो ये डाइपोल है, -q + q, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने P ले लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका लेंथ 2l हो गया, 2a, ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट से x की दूरी पे ये पॉइंट P ले लिया। तो P इज ऑन द एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो इसको मान लो अगर अच्छा ये मान लेते हैं, है ना, Vp क्या होगा, Vp, तो ये A, Vp इक्वल्स टू V due to 1 charge A, you can write, plus potential due to charge B. VA means potential at point P due to charge at A and this charge at B. इसका क्या हो जाएगा, K माइनस के क्यू बाई कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये तो A हो गया और वो X हो गया, X + A प्लस VB, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज, ये डिस्टेंस कितना है, X - A, तो KQ बाई X - A, तो ये डाइपोल मोमेंट था, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है 2a × Q,
और Q into 2A डायपोल मोमेंट, ठीक है। एनी डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन इधर होता है। तो यहाँ पर A Q कॉमन ले लिया तो 1/x माइनस ए ये रहा, फिर -1/x प्लस ए। सॉल्व दिस वन, A Q इंटू ये आ गया x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब ए क्यू इंटू ये कटा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बी पी। अच्छा, और ये बन गया के पी, पी मीन्स 2a इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक आ गया, ये लगभग ये आ गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब रिजल्यूशन करेंगे फॉर स्मॉल डाइपोल, ये जो एक्स है ना, डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, मॉलिक्यूलर डाइपोल होता है ना, बहुत छोटा होता है। तो दो चार्ज के बीच में माइक्रो मिली माइक्रो में डिस्टेंस होता है, लेकिन ये एक्स जो है वो कुछ सेंटीमीटर में दिया है, मान लो 10 सेंटीमीटर दिया है, और इसका दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर में बहुत फर्क है। सो एक्स इज मच ग्रेटर देन ए, ये ए जो है ना, तो एक्स इज मच ग्रेटर देन ए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ड्रॉप्ड, ए स्क्वायर को हम ड्रॉप भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी ड्रॉप्ड, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, वी पी इक्वल्स टू के पी बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला फाइनल ये हो गया। वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या आ गया, जी पी इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स कैन बी टेकन एज आर आल्सो, कभी आर भी लेते हैं, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ये हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ये बन गया। अच्छा, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में करते हैं, तो on the perpendicular bisector of dipole, है ना, on ये हुआ on the perpendicular bisector of dipole। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, मान लो ये चार्ज है, ये बाइसेक्टर हो गया बाइसेक्टर। यहाँ पर हम एक प्लेन भी सोच सकते हैं, प्लेन मान लिया इसको। दिस प्लेन इज कटिंग द डाइपोल परपेंडिकुलरली, ओके। तो इस प्लेन में एक लाइन है, जब लाइन है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, ये है -q है, ये +q है, और इधर का यहाँ से ये ए हो गया, यहाँ से इधर ए हो गया। ये डिस्टेंस का क्या मान लें, और इसकी दूरी है r। सपोज सेंटर ऑफ डाइपोल इज O, and through O a perpendicular bisector is there। यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एक प्लेन इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। तो इस प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, लेकिन कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर जो प्लेन है, परपेंडिकुलर में आ रहा है, दिस प्लेन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो वाला हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब बताओ, ये r की दूरी पर P है, डिस्टेंस ऑफ r, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज रूट अंडर r² प्लस a²। बोलो क्लियर है, और ये भी वही होगा, रूट अंडर r² प्लस a²। अब ये हो गया 1, मान लो ये हो गया 2, तो पोटेंशियल एट 1
अच्छा, पोटेंशियल एट पी क्या कराएंगे, 1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल वो नेगेटिव होगा और 2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल वो पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। इट विल बी V1 प्लस V2 पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 1 पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 2। तो V1 का कितना आ रहा है, V1 का आ रहा है के क्यू माइनस में के क्यू बाई रूट ऑफ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बाई आर डिस्टेंस ये है, अच्छा, प्लस में के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो क्या है यहाँ जो है वही है, माइनस प्लस कट हो गया है ना। At this point, potential due to 1 is kq by r, kq by r ये वाला। So at this point, due to this charge, again kq by r, ये दोनों कट हो गया, तो आंसर 0 है। That means on the perpendicular bisector of a dipole, the potential is 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कहाँ था, ये वाला था ना, हाँ, के पी बाई एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। अब हमने किसी भी पॉइंट पे ऐसे किया था ना, पिछला वाला वीडियो देख लेना, ये सेंटर ओ है, यहाँ से हमने एक पॉइंट पी लिया था, ये थीटा लिया था, ये 180 माइनस थीटा, हाँ, तो ये आर ले लिया था और ये R1 ले लिया था, ये R2 ले लिया था और ये टोटल हो गया 2a हो गया। हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल एट पी, क्या निकाला था, पोटेंशियल एट पी ए पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब लिया था, आर स्क्वायर, ए पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था हमारा potential due to a dipole at any point. That derivation we have done, and that derivation we have done according to NCERT book. Okay, by using the Triano property. By using the Triano property. कौन सा क्या किया था, ऐसे 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 ये है, ये है, ये B है, ये B है, ये C है, ये B है, तो cos A equals to माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2bc, इस तरह का फॉर्मूला करके हमने ये R1 R2 फाइंड करके पोटेंशियल को ऐड करके किया था। ठीक है, लुक एट दैट डेरिवेशन इन वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 03, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 03। तो वहाँ पे डाइपोल का डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं शॉर्टकट में भी कर सकता हूँ, एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी है। तो लेट अस गेट द टाइम, इफ द टाइम परमिट्स वी कैन डू दैट। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज ओवर हियर, अच्छा इसको नहीं बताता हूँ, इसका तो है ए बी बाई एक्स है ना। अच्छा, जब ये एक्सिस में था, अभी आप देखो एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, अगर जब ये एक्सिस में था यहाँ पे, तो थीटा कितना 0 बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड आर वेक्टर ऐसे है, डाइपोल मोमेंट भी ऐसे है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट कर दो थीटा 0, क्या आ जाएगा है ना, ऑन एक्सिस बी एक्सिस ऑफ डाइपोल के पी कॉस 0 बाई आर स्क्वायर, तो के पी बाई आर स्क्वायर बहुत सही है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या था, एक जनरल पॉइंट था, एट एनी पॉइंट, पॉइंट तो कोई भी पॉइंट है, किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, आर थीटा का ओरिएंटेशन में, डिस्टेंस आर है और एंगल थीटा है, ठीक है। So based on this derivation, we can find out the potential of the dipole on its axis and also on the perpendicular bisector. एक्सिस का निकाल दिया हमने, है ना, और बाइसेक्टर में क्या होगा, मान लो ये बाइसेक्टर है और ये है हमारा, ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है और ये रेडियस वेक्टर है,
एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर कर दो बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू ए पी cos 90 बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 0। यहाँ पर 0 निकला था। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट कर देते हैं थीटा का वैल्यू तो वो भी 0 आ रहा है। सो दिस इज डन टू ब्रिंग द फील that on the axis of the dipole the potential is kp by x square, and on the perpendicular bisector it is the forward bisector it is 0, and at any point it is kp cos theta by r square. ओके अब देखते हैं एट एनी पॉइंट में, अच्छा इसका थोड़ा सा रिलेशन कर देता हूँ, तो उसके बाद में कर देता हूँ। एट एनी पॉइंट, I am repeating the derivation because it is very important. Any point with respect to a dipole के रेस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट पे हम क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मान लेते हैं एक डाइपोल ऐसा है, ऐसा है ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है, हम लोग डेरिवेशन के लिए थोड़ा लंबा ड्रॉ करते हैं। ना दिस डाइपोल मोमेंट इज दिस इज द डाइपोल मोमेंट, दिस इज द मिड पॉइंट। फ्रॉम द मिड पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ आर देयर इज अ पॉइंट, सपोज पी, नॉट पी सॉरी आर ले लेते हैं, point R, where this R vector, ये R vector जो है, R vector ये जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। दैट मीन्स एट द ओरिएंटेशन ऑफ थीटा there is a point with respect to the center of the dipole। डाइपोल के सेंटर से आर की दूरी पर ये आर पॉइंट दिया और एंगल थीटा। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ है तो ऐसे ये आर हो जाएगा, ये पूरा थीटा हो जाएगा। यहाँ भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, एनी पॉइंट। सो दैट पॉइंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड एट व्हाट एंगल विद द डाइपोल मोमेंट। अच्छा ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये वाला डाइपोल मोमेंट है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। ओके, तो इसका लेंथ है 2a, यहाँ पर a। मैं सिर्फ जिसका मेन पॉइंट लिख रहा हूँ। इन योर पेपर यू हैव टू राइट ऑल द एजम्पशंस। लेट AB be a dipole of charges minus q plus q separated by distance 2a, and O is the center of the O लिखना है। O is the center of the dipole। On the center of the dipole there is a point R at distance R and at an angle of theta between R and dipole moment। So we need to find out potential due to the dipole at R। ऐसा लिखना पड़ेगा। Okay, here we are not writing। Now तो सॉल्व करने के लिए रिजॉल्व P वेक्टर into its components। तो क्या आ जाएगा, horizontal component of P वेक्टर is equal to P cos theta। ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये इसका जो है ये जो
जो डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट का ये वाला पार्ट, ये एंगल थीटा एंगल के साथ, ये हो गया पी कॉस थीटा, ये हो गया पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। अब इसका ये वाला, इसका परपेंडिकुलर, ये जो पी कॉस थीटा है, ये एक कंपोनेंट ये हो गया अराउंड द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, और इसका परपेंडिकुलर ऐसे दूसरा कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं पी साइन थीटा, है ना। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाया है अलोंग दिस वेक्टर, ए वेक्टर है, इसके अलोंग में वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो गया, ये वाला ए कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ये हो गया पी कॉस थीटा, ये हो गया पी साइन थीटा। बाय डूइंग दिस वी गॉट टू मोर डायपोल्स, हमको दो डायपोल मिले, एक डायपोल ये, दूसरा डायपोल ये, अच्छा पी कॉस थीटा। So R lies on the axis of P cos theta and on the perpendicular bisector of P sin theta। अगर इसको हम देखें तो R पॉइंट इसके एक्सिस में लाई कर रहा है, और इसको देखें तो R पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बी पी बी आर, बी आर क्या हो जाएगा, बी पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा, है ना, ऑन द एक्सिस, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ठीक है। अच्छा, एक्सिस का क्या था फॉर्मूला, के पी बाई आर स्क्वायर, ओके, के पी बाई आर स्क्वायर, तो के पी बाई आर स्क्वायर। तो ये लेकिन यहाँ पे पी कौन सा है, यहाँ पर पी सिर्फ पी नहीं है, पी कॉस थीटा है, डायपोल मोमेंट हैज बीन चेंज, डायपोल मोमेंट इज पी कॉस थीटा, इज फॉर दिस डायपोल मोमेंट इज पी कॉस थीटा, एंड फॉर दिस डायपोल मोमेंट इज पी साइन थीटा। तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हाँ तो आर ही है ना, ये आर डिस्टेंस सेंटर से, हाँ ये डायपोल ये है, इसका सेंटर ये है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर हो गया, आर स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी इस डायपोल के लिए ये वाला है पी साइन थीटा, इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने जीरो किया था ना यहाँ पे, द पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज जीरो, ये जीरो हो गया, तो आ गया वी आर इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यही था शॉर्टकट डेरिवेशन, जो डाइपोल का जो पोटेंशियल हम निकालते हैं किसी एक एट एनी जनरल पॉइंट, उसका शॉर्टकट डेरिवेशन ये है। ओके, so all these things is done. Now we will move to relationship between potential and electric field. इसका डिस्कशन मैंने पहले भी किया था। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का डिफरेंस। एक्चुअली पोटेंशियल भी अकेला डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइंड है। हाँ, अगर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लेके आते हैं किसी भी फील्ड में, इन्फिनिटी चार्ज लेके आते हैं और उसके ऊपर कुछ वर्क करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज।
डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पॉइंट, यहाँ पे इंफिनिटी है, यहाँ पॉइंट ये है, तो यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? यहाँ का पोटेंशियल हम अकेला नहीं निकाल सकते, हमको करना पड़ेगा वी ए इंफिनिटी से यहाँ आया ना, इंफिनिटी से यहाँ पे आया, तो इसको करते हैं वी ए माइनस वी इंफिनिटी, वी इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी टू ए बाय विच फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज कैरिड, चार्ज विच इज कैरिड। तो वी ए इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो, क्योंकि इंफिनिटी में जब था तो कोई वर्क उसमें हुआ नहीं था, अच्छा तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू ये वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय टू, ये हम लोगों ने किया था। तो वी ए इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल फोर्स बाय टू। तो एक्चुअली ये वी ए अकेला डिफाइंड नहीं है, डेल्टा वी डिफाइंड है, डेल्टा वी इक्वल टू वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय टू, ये डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड है। अच्छा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल। तो डेल्टा वी डिफाइंड है वर्क एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा सोचो आप, if electric field is uniform, uniform means constant electric field everywhere, हर जगह पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक पॉइंट Q चार्ज रखा हुआ है, उसको हम कहाँ से A से B में मूव करना चाहते हैं, ऐसे मूव करना चाहते हैं, जिसका वैल्यू है दिया डेल्टा आर, ठीक है, इसका डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। तो वी वांट टू, और यह पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, उधर ले जाएगा, इट विल पुश इन दैट डायरेक्शन। So we have to apply external force and we can shift that charge from A to B through a distance delta R. Okay. Then this side we are applying minus QE against the electrostatic force. तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स उधर लग रहा है, QE इधर लग रहा है, QE इसके ऊपर चार्ज फोर्स उधर लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, एंड शिफ्टिंग डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A to B, and then we will get potential difference between A and B. Okay. So force external, हमें यहाँ पर assumption क्या करना है, suppose E be the uniform electric field and a point charge, small positive charge is placed in the electric field and it has to be displaced from A to B, and we need to find out the potential difference between A and B. Okay, and the force with which we are displacing the A and B is minus QE, which is equal to QE, and with that force we are the charge is being displaced slowly at constant acceleration, at zero acceleration and constant speed, so that the change in kinetic energy is zero. There is change in kinetic energy is zero. Okay, there is no kinetic energy, no change in kinetic energy.
स्पीड कांस्टेंट है तो कैंडिडेट कैसे होगा, तो कांस्टेंट स्पीड में उसको धीरे 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 करके लेके आए। तो फोर्स एक्सटर्नल क्या होगा, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये हो गया माइनस क्यू ई। अच्छा, और अब लिखते हैं वर्क डन, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू। तो यहाँ पर हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल डॉट डेल्टा आर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स F dot S, so force external dot delta R वेक्टर में। तो फोर्स एक्सटर्नल क्या है, माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो ये हो गया ये, देयरफॉर डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी by magnitude of charge, then delta V equals to work external is minus q e vector dot delta r। मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूँ, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ थीटा करके नहीं लिख रहा हूँ, because I don't know how much is the theta, because I can displace the charge from A to B, this A to B can be like this also, यहाँ A है यहाँ B है, ऐसे भी हो सकता है सर्टेन एंगल में, हाँ यहाँ A है यहाँ B है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं से कहीं भी डिस्प्लेस करो, एनी टू पॉइंट में उनको डिस्प्लेस करना है। तो दैट एंगल इज नॉट फिक्स्ड, it angle may be anything, so we will leave the formula in dot product, work external by q minus qe dot dr divided by q cancel, delta v equals to क्या आ गया, माइनस e vector dot delta r vector। this is for uniform electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर हो जाता है, ठीक है, ई डॉट डेल्टा आर हो जाता है। अब एक फील्ड लाते हैं, ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड delta V equals to minus E dot delta. Delta V is negative of the dot product of the electric field and displacement vector. कैसे भी कह सकते हैं कि negative of the line integral of electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो अभी आया नहीं है। अब यहाँ पर एक फील्ड है, बताता हूँ मैं, मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इक्वल स्पेस यूनिफॉर्म इक्वल टू 20 मीटर 20 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, बट इट विल बी वोल्ट पर मीटर, बिकॉज इफ यू फाइंड E and dr cos theta into then P equals to dV by dr cos theta। हाँ, एक चीज़ मुझे समझाना है कि मान लो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से A से B में हो रहा है, चार्ज डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा R है ना, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच में एंगल है 180। अगर 180 हुआ, हाँ, या तो 0 डिग्री हुआ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और A to B
इसको उधर ले जाया जा रहा है, तो डेल्टा इधर इधर की डायरेक्शन हो गया। आइदर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। इन दैट केस यू कैन राइट डेल्टा बी बाई डेल्टा आर कॉस 180 या तो कॉस 0 डिग्री। थीटा के साथ में लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट है ये सीधा नीचे नहीं आएगा। इससे पहले मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ये हर एंगल के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला practically not applicable. We have to leave the formula in dot product. Delta V equals to minus E vector dot dr vector. फिर बाद में जब हम कोई सवाल करेंगे तो वहाँ पे E वेक्टर और dr वेक्टर का कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो उस एंगल को बैठा देंगे और कॉस उतना डिग्री कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही लिखते हैं। डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये हो गया। अच्छा, प्रूव हो गया। अब एक फील्ड लाते हैं, ई इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्यों हुआ, ये वोल्ट और ये मीटर, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे हमने दो प्लेट रख दिया, प्लेट ए प्लेट बी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज है या तो प्लेट बी मान लो ये चार्ज नहीं है, सब छोड़ो। यहाँ पर डायरेक्ट दिया है प्लस 30 वोल्ट, यहाँ पे ये प्लस 30 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। तो बी का पोटेंशियल पता नहीं है, बट डिस्टेंस इज 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर है। तो यहाँ लिखा है कि फाइंड वी बी, वी बी कितना होगा। वी बी निकालने में हम क्या करना पड़ेगा, डेल्टा बी पहले करना पड़ेगा, डायरेक्ट वी बी नहीं निकलेगा। वी बी डेल्टा बी का मतलब होता है वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी। तो वी बी निकालने के लिए हमको वी बी माइनस बी ए, डेल्टा बी मीन्स वी बी माइनस बी ए। ओके, ए टू बी हम जा रहे हैं। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ए में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी में पोटेंशियल कम होगा। क्यों, सही बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव एंड में तो पोटेंशियल कम होता है, पॉजिटिव एंड में पोटेंशियल ज़्यादा होता है। हाँ, दैट विल स्टडी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑल्सो। और एक चीज़ है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो इधर क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये लोअर पोटेंशियल आपको निकालना है। डेल्टा बी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, इसका मॉड्यूलस, हाँ यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, तो माइनस नहीं लिया, मॉड्यूलस ले लिया डायरेक्ट। अच्छा, माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है, मैं नहीं लगाने पर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। उसके बाद कौन सा किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, किस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के हो जाता है। उसके बाद हम माइनस करके निकाल लेंगे। साइन वगैरह बाद में लगा सकते हैं, अभी खाली निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ई का कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा ई डेल्टा आर कॉस। हमने सोच लिया एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, तो ये डी आर का डायरेक्शन हो गया, ऐसे डी आर का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो ई डॉट डी आर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री। अगर ऐसे मूव करते हैं तो ये डी आर का डायरेक्शन हो जाएगा, उस टाइम यहाँ पर एक एंगल आ जाएगा, यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल आ जाएगा।
वहाँ पे कॉस जितना एंगल आएगा उतना कॉस डिग्री उतना कर देंगे, बस हो गया आंसर। So here both we have supposed that some charge is displaced from this to this. So displacement vector is displacement vector dr vector is in this direction along the electric field. So E dr was 0. So हो गया E का कितना दिया है 20 वोल्ट पर मीटर है ना, इंटू dr कितना है ये 5 मीटर है 5 है ना, 5 0 का 1 कितना हो गया 100 वोल्ट। इसका मतलब ये 30 नहीं होगा, ये 150 वोल्ट कर देते हैं क्योंकि 5 मीटर है ना। 20 न्यूटन 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर है, 1 मीटर का 20 वोल्ट, तो 5 मीटर का 100 वोल्ट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा होना चाहिए। इसको मैंने 150 कर दिया, अब यहाँ का निकालना है तो कितना आ गया 100 वोल्ट। अब तो ये मैग्नीट्यूड में आया, अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव कैसे करेगा। Which is at higher potential? A is at higher potential, B is at lower potential. Why? Because potential decreases in the direction of electric field. So VB is smaller than VA. Okay. Therefore, delta V equals to VB minus VA होता है, VB माइनस VA, वो कितना आ गया, वो इसका निकाला था ना, तो VB माइनस VA, ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, कम से ज़्यादा का माइनस करेंगे क्या होगा माइनस 100 वोल्ट। चेंज इन पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट, ठीक है, और ये माइनस 100 वोल्ट हो गया, कम हो गया इस तरह से। इसको हम ऐसे करते हैं, इसको मैं 100 वोल्ट कर देता हूँ डेल्टा वी को। अच्छा, हमको VB निकालना है, VB का VB रख दिया माइनस VA का 150 कर दिया, तो माइनस 100 नहीं होगा, सॉरी माइनस 100 नहीं होगा। डेल्टा V इज 100 वोल्ट, ओके, डेल्टा V मीन VB माइनस VA इज 100 वोल्ट, VB इज VB, VA इज 150, तो 100। अच्छा नहीं, ये माइनस VB माइनस VA माइनस होगा, यहाँ करते हैं VB is smaller than VA, so VB minus VA will be minus 100 वोल्ट। ये तो मैग्नीट्यूड में आया, डेल्टा V जो है ना वो मैग्नीट्यूड में आया। अगर हम VB माइनस VA करेंगे तो माइनस 100 होगा, अगर VA माइनस VB करेंगे ये हायर है ये लोअर है, तो VB माइनस VA माइनस VB करेंगे तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। लेकिन हमको क्या करना है VB माइनस VA करना है, VB माइनस VA अगर करना है तो माइनस 100 वोल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है, माइनस 100 हो गए, तो VB इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 150, कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर 150 वोल्ट, यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 वोल्ट पर मीटर से 20 वोल्ट पर मीटर से पोटेंशियल कम होते जा रहा है, तो 5 मीटर पार करते करते कितना कम हुआ 100 कम हो गया, 150 था 100 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना बचा 50, क्लियर। It was 150 volt here, and the volt potential electric field is given 20 volt per meter. That means for in 1 meter distance, the potential drop is 20 volt. So in 5 meter distance, potential drop is 100 volt. So how much left then out of 150? 50 volt left. ये फील होना चाहिए।
इसी फील्ड के साथ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, पोटेंशियल का ड्रॉप होते होते जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसका और एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, और एक क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, अगर अंदर घुस के पढ़ाई करना है तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। मान लो और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन हम लोग कर सकते हैं। when the electric field is non-uniform and we can find out the relation between electric field and potential, but this is uniform is going on. ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका है 30 न्यूटन पर कूलम, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, इसका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे है। हमको फाइंड करना है BA माइनस BB, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 BA माइनस BC, नहीं BC माइनस BA, BC माइनस BA। नंबर 3 BA माइनस BD। नंबर 4 BC माइनस BD, ये करना है। चलो नंबर 1 क्या करना है, BA माइनस BB, तो BA माइनस BB इक्वल टू डेल्टा B। इसके लिए ये इक्वल टू नहीं है, इसके लिए हम डेल्टा B निकालेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा कम पोटेंशियल में है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा B इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। तो E का कितना है 30 इंटू डेल्टा R का कितना है, A से B ना, A से B 1 मीटर है 1, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ऐसे A टू B। अच्छा 1 इंटू डेल्टा R, ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया, है ना। तो देयरफॉर अभी देखो A टू B कौन सा ज़्यादा है पोटेंशियल, A में ज़्यादा है B में कम है, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एकदम ट्रू है, दिस इज ऑल टाइम ट्रू, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो A is at greater potential and B at lower potential, so BA minus BB will be plus 30 because BA is greater than BB. Yeah. Second, BC minus BA के लिए हम फिर दोबारा डेल्टा B निकालेंगे, E डॉट डेल्टा R, तो हो जाएगा E कितना है, हाउ मच इज E 30 इंटू AC, CA ना, CA AC की बात है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 1 और ये √2 हो जाएगा, पाइथागोरस का थ्योरम √2, तो इंटू √2 इंटू, और ये एंगल कितना डिग्री है 45, ये एंगल 45 डिग्री है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज डायगोनल 45 डिग्री, तो cos 45 हो गया। अच्छा, तो 30 √2 इंटू cos 45 1/√2 कट हो गया। अच्छा, इक्वल टू 30 वोल्ट आ गया। अब देखते हैं C इज हायर पोटेंशियल और A इज हायर पोटेंशियल।
C is lower potential and A is higher potential. So BC minus BA will be negative. BC is less than BA, therefore BC minus BA will be negative of 30 होगा. ये आ गया. अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला यहाँ करता हूँ. थर्ड, अच्छा ये थर्ड ऐसे है ना. 2 3. थर्ड वाला देखते हैं. VA माइनस VD करना है. VA माइनस VD, इसके लिए क्या करेंगे? डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R. तो E का कितना है? 30 इंटू डेल्टा R का मच A टू D ना, A टू D 1 मीटर और A टू D मतलब ये हो गया हमारा R वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर. और ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. ये एंगल 90 भी आ गया. तो cos 90 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0. वाई? ये पूरा लाइन में एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी सेम. पोटेंशियल विल बी सेम क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है. इसका पोटेंशियल सेम होगा इन पैरेलल. फील हो रहा है? क्लास 10 में भी था ये. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल बी सेम. उसी तरह सोचो, ये दोनों पैरेलल हैं, एक ही लाइन पे है ये दोनों A और D. अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये. अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होते चले जाएगा, लेकिन ये एक ही लाइन पे है. So it will be 90 degree, so it will be 0. Potential, no potential difference. Everywhere same potential. Everywhere same potential. No potential difference. Potential difference is 0. तो ये तो आंसर आ गया. अब फोर्थ का करते हैं. इसके बाद वहीं करते हैं. ये लास्ट वाला करते हैं फोर्थ का. ठीक है. फोर्थ वाला BC माइनस VD. ये BC है, BC माइनस VD. हाँ, ये पूरा गंदा हो गया ना. पूरा गंदा हो गया. ये 1 मीटर. अच्छा, कुछ भी नहीं रहा है. ये 1 मीटर स्क्वायर है, 45 डिग्री. ठीक है. अच्छा, इसमें VD डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R. E का कितना है? 30 इंटू डेल्टा R का कितना है? C टू D 1 मीटर. 1 इंटू cos C टू dr vector in this direction and electric field in this direction 180 degree. dr vector इधर ऐसे और ये 180 cos 180. तो -30 आ गया, -30 वोल्ट आ गया. अब क्या करेंगे? VC is less than VD. VC will be less, VD will be more because potential decreases in the direction of electric field. ये कम है, ये ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा माइनस करेंगे क्या होगा? BC माइनस VD क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव ऑफ दिस प्लस 30 होगा. हो गया. ठीक. तो ये था application of relationship between electric field and potential. So in the next class we will do some more numericals based on variable electric field and relationship between electric field and potential.
Okay, then we will discuss about equipotential surface. I had told you that we will discuss about electrostatic potential energy, but not now. First, we will discuss about equipotential surface, then we will move to potential energy. Okay, so till here, till equipotential surface, we are dealing with potentials, only potentials. Okay, potential difference, potential difference and relationship between electric field and potential. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया है, अब यहाँ पर पोटेंशियल कर रहे हैं। इन दोनों का रिलेशन हम लोगों ने अभी बिल्ड किया। हाँ, तो पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। निकालने का एक तरीका होता है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके। फिर पोटेंशियल को यूज़ करके इलेक्ट्रिक निकाला जा सकता है, ये भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा। इसीलिए इसका और न्यूमेरिकल बचा हुआ है, उसको करने के बाद along with that we will do equipotential surface and then we will move to potential energy. Thank you so much for this class. We will meet next day. Thank you.